हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 9 जो कि है फिजियोग्राफिक ऑफ इंडिया यानी भारत की भौतिक भूगोल। कहते हैं भारत की भौतिक भूगोल काफ़ी मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। इवन कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी मान्य रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we have discussion most important chapter here of physiographical of India. The physiographical India is the most important chapter here, and first of all here location. Location is the most important here. The teacher learns when someone asks where India is. We can answer in a two way, the term of absolute and the relative location. Let us see what we mean by the absolute location and relative locations. Absolute location is given to degree of latitudes and longitudes. Relative location depend upon the point of reference, etc. and therefore. But first of all is the main point here. Latitude. What do you mean here? Latitude. Latitude is the angular distance north and south from the equator of a point on the earth as a surface. That is important. And second here, longitude. Longitude is mean. Longitude is a angular distance on the earth as a surface and measured east and west from the prime meridian and Greenwich. That is important. And the next is angular distance. Angular distance here, the angular distance between 2 points from to the center is called angular distance. Here show the diagram. There is the most important here. There is the northern and southern, the 90 and 90, north and south here. And the other side, the equator, the 0 to 0. But there is latitude of prime meridians in the show, and the tropical Cancer also show here. And tropical outlets, and there is equator, tropical Capricorn, and tropical Antarctica. This is the most important figure on your screen. There is a shape of Earth and the difference, the direction on your screen. The teacher asks some important things here. With the help of the map, can you find out the longitudinal and the longitudinal location of India is the main land? Thus today Natasha asks this answer. The India is a mainland extended to between to the 8 degrees and 4 northern and 37.6 northern latitudes, and from 68 and 7 eastern and 97.25 eastern latitudes. Thus the latitudes and the north and south extend to the 3,214 kilometer, and east base extend there to 2,933 kilometer. India is a count of 2.42% of the total world land area. And the teacher asks again, India lies entirely in the northern hemisphere, and the eastern hemisphere there is the tropical of Cancer, means 30s northern. And the pass through the center of the country, it divides the countries into the almost two equal parts. The northward of this latitude is the northern Indians, and south is known as the South India. And similarly, 82
to 30 east latitude and pass almost from the middle of the country. It is known as a standard meridian of India. That is important. And again, teacher asks here, now to determine the relative location of India and their record it in their space given below. Remember, relative location is given to relation to the other place north and south of northeast of next to across from. India is a part of the Asian continent and India is surrounded by the water from three sides. Arabian Sea is the best Bay of Bengal in the east and Indian Ocean in the south. Toward it is a northwest Pakistan and Afghanistan, China, Bhutan, Tibet, Nepal lies it is the north. Bangladesh and Myanmar lies to be its east, Sri Lanka and Maldives as the location in the Indian Ocean toward its south. The southernmost point of the country is the Indira Point. That is important. The southernmost point of the country is the Indira Point and Nicobar Island, which lies on the 6 degrees 4 and latitude of the Kanyakumari, is the southernmost point of Indian is a mainland which lies on the 8-4 north altitude. There is the most important word as things here, teacher. The next here, locationally significance. There is locational significance is the most important topic. Let's observe here. What do you notice? India is the largest country in terms of area and population in South Asia. It is surrounded by the oceans, and India is strategically localized in Indian Ocean. It's a command sea routes of between Europe and Africa. Southeast Asia for East Asia and the Oceania. It is because of this that the India shares a good trade relation between too many countries since ancient time. India has a good location in a term of the sea and also well connected by the land. And various parts like Natulal, Sikkim and Speakers La Himachal Pradesh and Joalis La is Brazil and the La Pass is Jammu and Kashmir have their own importance. The main India is a Tibet chase route that is connected to the Kalampong near of Darjeeling. With the Lhasa is the Tibet pass through there is a Jalepa La and the several passes have to be provided passes to be many ancient travelers. These routes are not only important for the trade but also to exchange the idea and culture. Here show the most important Indian trade route. There is almost all our country is trading for the India. There is the most important on your screen. यहाँ पर जो हमारा चैप्टर आया है कई मानने में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम भारत के भौतिक भूगोल के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। देखिए यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है सबसे पहले लोकेशन यानी स्थान। तो यहाँ पर एक शिक्षक ने पूछा छात्रों से, जब कोई पूछे भारत कहाँ है तो हम निरपेक्ष या संपेक्ष स्थिति को संदर्भ में दो तरीके से उत्तर दे सकते हैं। हमारा तात्पर्य निक्षेप और सापेक्ष स्थिति से क्या है। निरपेक्ष स्थिति अक्षांश और देशांतर की डिग्री में दिया जाता है और सापेक्ष स्थिति स्तंभ किसी बिंदु पर निर्भर करता है, उदाहरण के लिए निकट या दूर या आसपास कोई स्थान। तो इसको हम इस रूप से जो है निर्देशित करते हैं। लेकिन अगर इन्हीं बातों को हम कुछ इसमें टर्म जाने तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर टर्म की बात करें तो देखिए सबसे पहले अक्षांश है। अक्षांश वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान के भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण होती है, यानी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिणी होती है। उसके पश्चात है देशांतर। देशांतर जो होती है पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का वह कोणीय दूरी है जो ग्रीनविच के जो है प्रधान मध्यस्थ से पूर्व या पश्चिम मापी जाती है। तो ये देशांत के रूप में देखा जाता है। और कोणीय दूरी जो होती है केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी को कोणीय दूरी कहा जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो आपके समक्ष ग्लोब दिख रहा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पृथ्वी का ग्लोब है, आप देख सकते हो। और ये बहुत ही आसानी से यहाँ पर समझाया गया है कि जो सेंटर में है 0-0 भूमध्य रेखा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आपको पता है इसको दिशा का भी जो हमें आभास कराया गया है। इसमें उत्तर दक्षिण दिखाया गया है आपको। और देखिए यहाँ पर जो है अर्काटिका वृत्त पे जो है 1/2 डिग्री उत्तर है और उसके बाद 23
जो है 1/2 उत्तर है, उसके बाद 0 आता है, उसके बाद 23, उसके बाद 66 और इसकी जो है उत्तर और दक्षिण में 90-90 की जो है एंगल बनी हुई है। तो इससे जो है हम अपने देश की जो है गणना करते हैं और समझते हैं। अगर देखें कर्क वृत्ति भी आपको नजर आएगा, मकर वृत्ति भी नजर आएगा, अंटार्कटिका वृत्ति भी नजर आएगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण होती है और भारत को भी जो है ट्रॉपिकल कैंसर जो है आप काटते हुए निकलती है, यानी मकर वृत्ति निकलती है। तो इससे हमें पता लगता है कि भारत की जो है स्थिति पूरे विश्व में किस स्थान पे है। और ये तभी आप बता सकते हो जब आपने ग्लोब्स के जो है विस्तृत अध्ययन किया हुआ होगा और उसके बारे में जानते होगे। तो यहाँ पर जो है 90 डिग्री के एंगल पर दिखाया गया है और दूसरे डायग्राम में जो है 180 के बीच में दिखाया गया है। और इसमें आपने देख सकते हो कि प्रधान मध्यस्थ है और पश्चिमी पूर्वी भी दिखाया गया है। यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिखाया गया है और यहाँ पर पश्चिम पूर्व दिखाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर शिक्षक ने यही बात को जानना चाहा कि मानचित्र की सहायता से क्या आप पता कर सकते हैं कि भारत की मुख्य भूमि की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति क्या है। तो इसी बीच नताशा नाम के बच्चे ने जो है बहुत ही जो है सटीक आंसर दिया और बहुत ही आंसर जो थी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। भारतीय मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 उत्तर और 37.6 जो है उत्तरी अक्षांश है और यहाँ 68.7 पूर्व की ओर और 97.25 जो है पूर्वी देशांत के बीच में स्थित है। और इस प्रकार उत्तर दक्षिण विस्तार में जो है 3214 किलोमीटर है और जो है पूर्वी पश्चिम विस्तार में 2933 किलोमीटर है। भारत संसार की कुल भूमि क्षेत्र के 2.42% ही है, यानी आप समझ सकते हो कि भारत जो है पूरे विश्व में इसको जो भूमि मिली हुई है सिर्फ 2.42% है, जो कि नताशा ने बखूबी बात बताया। शिक्षक ने दोबारा इस बात को जो है और भी क्लियर करने की कोशिश किया। उन्होंने बताया कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी देखा जाए तो भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा जो है 23°30 उत्तरी देशांत के मध्य से गुजरता है और यह देश के लगभग 2 बराबर भागों में भी विभाजित करता है और इसके उत्तर और उत्तर भारत को इसको दक्षिण की ओर दक्षिण भारत के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार जो है 82 डिग्री और 23 जो है पूर्वी देशांत के लगभग मध्य से गुजरता है और यह भारत के मानक मध्यांश के रूप में भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात शिक्षक ने और भी बात बताई और जो कि महत्वपूर्ण थी कि अब भारत के जो है सापेक्ष स्थिति निर्धारित करे कि फिर इससे नीचे दिए गए स्थानों में रिकॉर्ड करे। याद रखें कि सापेक्ष स्थिति अन्य स्थानों जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्व से आर पार है के संबंध बताता है। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है और भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिमी की ओर पाकिस्तान अफगानिस्तान है। कहते हैं चीन, भूटान, तिब्बत और नेपाल इसके उत्तर में स्थित है। बांग्लादेश और म्यांमार इसके पूर्व में स्थित है और श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में इसके दक्षिण की ओर स्थित है। देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह है, जो 6 डिग्री 4 दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, जबकि भारतीय मुख्य भूमि का दिशांतम बिंदु कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के हर एक पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पर बताई गई है। चलिए इसको मैप में भी हम समझने की कोशिश करें। अब इस मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण दर्शाया गया है। कहते हैं पश्चिम से पूर्व की जो है इसकी दूरी जैसे आप देख सकते हो 2933 किलोमीटर है। वहीं अगर आप देखिएगा तो उत्तर से जो है दक्षिण की तरफ जो है 3214 किलोमीटर की दूरियां को यहाँ पर जो है मानचित्र में दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भारत के हिस्से हैं जो यहाँ पर बताई गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है स्थानीय महत्व। आखिर स्थानीय महत्व का क्या यहाँ पर विशेषता रहेगी। कहते हैं भारत दक्षिण भाग समुद्र से घिरा हुआ है और भारत की हिंद महासागर में सामरिक स्थिति है। क्या आपने चित्र में 9 पॉइंट में नोट किया है कि भारत दक्षिण एशिया में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। यानी देखा जाए तो भारत दक्षिण एशिया में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और यह यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया दूरस्थ क्षेत्र और जो है ओशिनिया के बीच समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करता है। यही कारण है कि भारत के व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से अनेक देशों के साथ अच्छे रहे हैं और आपको पता है कि भारत जो है कई सालों तक जो है कोलिजम बना यानी उपनिवेश बना इन्हीं कारणों से हुआ, क्योंकि इसमें देश में
हर तरह के व्यापार जो है बखूबी किया जा सकता है। भारत समुद्र और भूमि की अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर नाथुला सिक्किम, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, जजेलिया और जो है ब्रूजीला जम्मू कश्मीर में है। जैसे विभिन्न दरोमंड घाटियों का अपना एक महत्व है, यानी देश दरारें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहते हैं मुख्य व्यापार जो है भारत तिब्बत के बीच में सदैव चलता आ रहा है। दार्जिलिंग के निकट जो है कंप्लोमिंग्स जलपा लद्दाख के मध्य से जो है ल्हास तिब्बत से जुड़ा हुआ है और दरें प्राचीन यात्रियों के लिए एक मार्ग नहीं प्रदान करता है, बल्कि विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान के लिए बेहद काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं दूसरे देशों के साथ जुड़ने का अर्थ यही होता है कि उनके विचारों और संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इस मानचित्र में आप देख सकते हो जहाँ पर विश्व को चित्र को जो है दर्शाया गया है और व्यापारी मार्ग को यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर जहाज, हवाई जहाज के द्वारा दिखाया गया व्यापार और जल मार्ग भी दिखाया गया है। तो आज आप समझ सकते हो कि विश्व का जो है जितने भी देश है भारत के साथ व्यापार करने के लिए अग्रसर हैं। इवन कि हर एक क्षेत्र से जो है यहाँ पर लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने जो है भारत के लोकेशन और उसकी विशेषता के बारे में यहाँ अध्ययन किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई जगह एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी दूरियाँ पूछी जाती है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना और अपने कॉपी पे नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, जितना हो सके वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने से ये होगा कि जो आपके संपर्क में होंगे उनको भी ये वीडियो की प्राप्ति हो जाएगी। और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने के लिए कोई खास नहीं करना है, यूट्यूब पे जहाँ पर वीडियो देख रहे हो वहाँ पर से लिंक कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जो देखेंगे देखेंगे, नहीं देखेंगे, आपने अपना कार्य किया, ये आपके लिए अच्छा था, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है इसमें जो है आपको 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए हर एक वीडियो जो है प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जहाँ पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। ये सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। जो मोबाइल में रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।